MS Study for CBSE pattern. Good morning everyone. This is the second part of your maths question number 10 which I gave you last video in homework. So I am going to solve this question. Tally with your answers. Question is, compare the numbers and put the correct symbols greater than, less than or equals to in the placeholders. First is 10,056 and 10,506. So 10,000 and 10,000 are same, but 56 and 506, which is greater? 506. So the sign will be this. Next is 72,070 and 70,270. So here 72,070 is greater. Next is 5,50,505 and 5,55,050. So here 5,55,050 is greater. Next is 2,31,031 and 2,31,310. So 2,31,31. These are equals to 31 and 310. So 310 is greater. Next is 90,999 and 99,099. So 99,099 is greater. Next is 28,31,467 and 28,34,167. So 28 are same. Here 31 and 34. So obviously 34 will be greater. So sign will be this. Next is chapter first revision part 2. Question number 11 का फर्स्ट पार्ट है, write the smallest number of digits formed by using the digits 5, 3, 9, 1 and 0. We have to write the smallest number of digit. So this when we have to write the smallest number, all the digits should be arranged in ascending order. Equals to 1, 0, 3, 5, 9. As I already told you that if there is any 0, we cannot put it in front, because if we put in front, then the digit will become one less number. So first of all, we have to take the number which is greater than 0. After that, all the numbers would be in ascending order. Next is, write the greatest number of different digits formed by using the digits these 2, 0, 8, 7 and 5. So the greatest number equals to, when we have to make any greatest number, we have to put all these digits in descending order. So 8, 7, 5, 2 and 0. 87,520 is the required number. Next is, write the smallest 4-digit number using the digits 6, 0 and 5. Repeat 5 twice. 5 को 2 times हमें repeat करना है. So smallest 4-digit number. Number by using 6, 0 and 5 is equals to 5, 0, 5, 6. 1 minute. 5, 0, 5, 6. Because we have to repeat the 5 twice. Next is, write the greatest 4-digit number using the digit
3, 6 and 9. Now repeating 6 twice. Greatest 4 digit number बनाना है. Greatest 4 digit number using 3, 6 and 9 is equals to 9663. Next question is addition. So addition you have to do in homework. Question number 14 is the cost of a refrigerator is rupees 48,748 and the cost of a motorcycle is rupees 29,657 more than that of a refrigerator. It means आपको रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट दी हुई है और मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है रेफ्रिजरेटर से वो दी हुई है. ये आपको रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट नहीं दी हुई है. ये आपको ये बताया गया है कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट मोटरसाइकिल की जो कॉस्ट है वो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट से इतनी ज़्यादा है. तो बोले हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द रेफ्रिजरेटर एंड द मोटरसाइकिल. सो हमें रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट तो मालूम है बट मोटरसाइकिल की कॉस्ट हमें नहीं मालूम है. बट हमें ये पता है कि मोटरसाइकिल की जो कॉस्ट है वो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट से 29,657 ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is equals to 48,748. Now cost of a motorcycle equals to 48,748 plus 29,657. दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. 8 और 7 15, 1 कैरी गया 6 हो गया. ये 6 और 4 10, 1 कैरी गया 7 ही हो गया. 7 7 14, 1 कैरी गया 9 और 1 10, 10 और 8 18, 1 कैरी गया 2 और 1 3, 3 और 4 7. It means 78,405 is the cost of motorcycle. नाउ इन्होंने हमसे पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द रेफ्रिजरेटर एंड मोटरसाइकिल. हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड मोटरसाइकिल इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, 48,748 प्लस 78,405. आप इसे रफ में भी शो कर सकते हैं. एडिशन के लिए रफ वर्क है आपका 48,748 एंड 78,405. 8 और 5 13, 1 कैरी गया 5, 7 4 11, 1 कैरी गया 8 8 16, 1 17, 1 कैरी गया 7 4 11 और 1 12. 1,27,000 equals to 1,27,153 is the answer. Question number 15 is in an election 4,98,656 votes were found valid. It means इतने वोट सही हैं. 6,768 votes were found invalid and 83,865 did not cast their votes. How many votes were registered in all? So number of valid votes equals to 4,98,656. Invalid votes equals to 6,768 and number of
votes not cast equals to 83,865 प्लस कर देंगे हम इसमें टोटल वोट्स वर रजिस्टर्ड। टोटल वोट रजिस्टर्ड 8 6 8 14 14 5 19 1 कैरी गया 6 6 12 12 और 5 17 और 1 18 1 कैरी गया 8 और 7 15 16 16 और 6 22 2 कैरी गया 8 और 6 14 15 16 16 और 3 19 1 कैरी गया 9 और 8 17 और 1 18 1 कैरी गया 5. So all the vote registered are 5,89,289. Question number 16 is subtract. So here I will do one question and the remaining question you will do yourself in homework. First is 4 minus 9. तो 4 में से हम -9 नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से बोरो करना होगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 5। फिर 1 में से 6 नहीं जा सकता है तो यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 6 जाएगा 5। अब 2 में से 5 नहीं जा सकता है तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, बट इसके पास भी नहीं है तो ये इससे बोरो करेगा। इससे बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ से बोरो करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया 7, 9 में से 4 जाएगा 5। नाउ अब 0 में से 10 नहीं जा सकता है, 7 नहीं जा सकता है तो यहाँ से बोरो करेंगे, हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 7 जाएगा 3 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर इज 1,02,003 if one of them is 64,597 find the other number। मीन्स हमें दो नंबर को ऐड करके ऑलरेडी दिया हुआ है और उनमें से एक नंबर गिवन है, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स equals to 1,02,003 and one of the number equals to 64,597,000। दोनों के सम में से पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो सेकंड वाला नंबर आ जाएगा। अदर नंबर इक्वल्स टू, ये माइनस आप लोग होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 78,489 इफ द लार्जर नंबर इज 3,50,102 फाइंड द स्मॉलर नंबर। इट मीन्स अब हमें दो नंबर को माइनस करने के बाद उसका आंसर दिया हुआ है और उन दोनों नंबर में से बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है, तो हमें छोटा वाला नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स $74,849 लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर में से ही हम छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं, तो लार्जर नंबर सबसे पहले हम लिखेंगे, तभी मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था। लार्जर नंबर इक्वल्स टू 3,50,102। सो द स्मॉलर नंबर हमें कैसे पता चलेगा, जब हम बड़े वाले नंबर में से दोनों नंबर के डिफरेंस को माइनस कर देंगे। इसे भी आप लोग होमवर्क में करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द फिल इन द प्लेस होल्डर्स।
इस नंबर को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज़ वेरी इजी। जो भी नंबर आपको दिया, इट मीन्स अगर आपको किसी भी नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, जो नंबर हमें गिवन है पहले वो नंबर लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए इसमें कितने ज़ीरो हैं, 1, तो हम यहाँ पे 1 ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमें ये वाला मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखिए लास्ट में कितने ज़ीरो गिवन है, 2 ज़ीरो, उसे लिख दीजिए, फिर 3 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए हैं उसे होमवर्क में करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, सॉरी फिल नहीं, फाइंड है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू मल्टीप्लाई दिस। मैं आपको ये वाला मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ बिकॉज इसमें ज़ीरो गिवन है। 6 5 जो 30, 3 कैरी गया, 6 जो 36 और 3 9 आया, तो 3 कैरी गया, 6 1 जो 42 और 3 45, 4 कैरी गया, 6 8 जो 48 और 4 52। क्रॉस लगाएंगे। ज़ीरो के टेबल को जब भी हम किसी भी नंबर से पढ़ते हैं तो हमेशा ज़ीरो ही आता है। इट मीन्स 0 5 जो 0, 0 6 जो 0, 0 7 जो 0, 0 8 जो 0। अब 2 क्रॉस लगाएंगे हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 5 जो 15, 1 कैरी गया, 3 6 जो 18 और 1 19, 1 कैरी गया, 3 7 जो 21 और 1 22, 2 कैरी गया, 3 जो 24, 25, 26। Now we have to add all these numbers, 0 9 5 5 10, 1 कैरी गया, 9 2 11 और 1 12, 1 कैरी गया, 5 2 7 और 1 8 6 2। So this is the product of this question. So you have to do question number A and B in the homework. Okay, so best of luck and do your homework properly and make the notes proper, whether it is fair copy or any other copy, because this chapter will not be going to repeat. Okay, thank you, have a nice day, keep yourself safe and clean. Hello everyone, this is part 3rd of chapter 1 revision. Question number 21. The cost of a mobile phone is rupees 2786. What is the cost of 257 such mobile phones? मीन्स आपको एक मोबाइल की कॉस्ट दी हुई है और आपको 257 मोबाइल्स की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन इज इक्वल्स टू 2786। उसके बाद हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 257 मोबाइल फोन्स इक्वल्स टू 2786 मल्टीप्लाई बाय 257। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। So the answer will be 716,002. It means 7,16,002. Next question is, in each of the following division sums find the quotient and remainder. यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। बाकी के इसके जो 2 3 4 जितने भी पार्ट्स हैं F तक मीन 6 पार्ट हैं, तो आपको 5 पार्ट्स खुद से अटेम्प्ट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 66,863 को आपको डिवाइड करना है 76 से। तो ये रहा आपका 76 6 6 8 6 3। सबसे पहले हम 76 का टेबल लिख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। 76, दिस इज द टेबल ऑफ 76। नाउ
first of all we have to see that the number is 66, which is not divisible by 76, so we have to take the 8 also. So now number is 668. So how many times I have to read the table 76 for obtaining 668? So let's see, where is 668? 668 is not given, 684, but it is greater than 668, so we will have to take 608, which comes in 8 times. So here I will write 8 and here 608. माइनस करेंगे 0 6, उसके बाद अगेन हम 6 को लेंगे ना 606, 8 टाइम्स में हमारा 608 आया है, सो हमें 7 टाइम्स में लेना पड़ेगा। 7 टाइम्स में आएगा आपका 532, माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, 10 में से 3 जाएगा तो 7। अब यहाँ पे हम 3 भी नीचे ले लेंगे, 743, तो ये चला जाएगा आपका 9 टाइम में 684, माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 8 जाएगा 5। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। सो क्वेश्चन है हमारा is equals to 879 and remainder is equals to 59. So all these parts you have to do in homework. Question number 23 is, an aeroplane takes 17 hours to fly a distance of 15,419 kilometer. How far does it fly in 1 hour? 17 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एन एरोप्लेन कवर distance in 17 hours equals to 15,419 किलोमीटर। के बाद एन एरोप्लेन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है 17 आवर्स से। When I have divided 15,419 from 17, it comes 907. So the aeroplane cover distance in 1 hour equals to 907 kilometers. Question number 24 is, the cost of a fluorescent tube is rupees 57. How many such tubes can be bought for rupees 19,893? Question number 24 is, the cost of a fluorescent tube is rupees 57. How many such tubes can be bought for rupees 19,893? So first of all we have to write cost of a fluorescent tube equals to 57 and tubes can be bought for rupees 19,893 is equals to 19,893 divided by 57. It means मुझे एक ट्यूब की कॉस्ट दे रखी है और मुझे साथ में एक ह्यूज अमाउंट दे रखा है, और ये पूछा गया है कि उस अमाउंट में हम कितने ट्यूब्स फ्लोरेसेंट ट्यूब्स खरीद सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ह्यूज अमाउंट को कॉस्ट ऑफ 1 फ्लोरेसेंट ट्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या रहा है।
This is the division. When I divided 19,893 from 57, I got 349. So the 349 fluorescent tubes can be bought. Next question is list all the factors of 48 and 120. So factors निकालने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा 48. 48 किस टेबल में आता है? 2 in how many times? 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again 24 comes in table of 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Again 2 के टेबल में 6 टाइम, again 2 के टेबल में 3 times. Now 3 1s are 3. So the factors of 48 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. सेम उसी टाइप से हम करेंगे 120 के लिए. 2 के टेबल में चला जाएगा 60 टाइम में, 2 से चला जाएगा 30 टाइम में, 2 से चला जाएगा 15 टाइम में, 3 से चला जाएगा 5 टाइम में एंड 5 से चला जाएगा 1 टाइम में. द फैक्टर्स ऑफ 120 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3 into 5. 48 के फैक्टर्स हैं आपके 2 into 2 into 2 into 2 into 3 एंड 120 के फैक्टर्स हैं आपके 2 into 2 into 2 into 3 into 5. इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 26 करना है. 26 का ये पार्ट है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. So 7 1 is 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28 and 7 5s are 35. First 5 multiples बोले थे 7 is 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28 and 7 5s are 35. 5 times हो गया. Now come to the next part. Write the first 4 multiples of 18. So 18 1s are 18. 18 2s are 36, 18 3s are 54 and 18 4s are 72. Next question is write down the first 20 odd numbers. Odd numbers वो होते हैं जो 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं. Means all those numbers which is not completely divided by the table of 2. फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स लिखने में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35. अब काउंट कर लेते हैं 20 हो गए या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. उसके बाद 37 एंड 39. ये हो गए हमारे पूरे 20 नंबर्स. नेक्स्ट इज राइट डाउन ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90. इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आ जाते हैं. अब बिटवीन लिखना है तो 70 और 90 को इंक्लूड नहीं करना है. सो 72 74 76 ऐसे ही इसको आपको कंप्लीट कर लेना है अप टू 88. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द प्राइम नंबर्स. यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है और साथ में मैंने यहाँ पे डिफाइन भी लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स का. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कम्स इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ. इट मीन्स 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं. जैसे कि यहाँ पे है 2 5 13 17. 9 नहीं है क्योंकि 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है. यहाँ पे 3 टेबल्स हो गए. हमें सिर्फ 2 टेबल चाहिए, 1 का टेबल और खुद का टेबल.
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से आगे कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 43 एंड 31, ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। वैसे ही यहाँ पे और भी आगे नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे भी आपको सर्कल लगाना है जो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हों। उसके बाद है फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 56। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 32 और 56 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। 32 के फैक्टर्स हैं 2 2 2 2 2 एंड 56 के फैक्टर्स हैं 2 2 2 2, सॉरी यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम 32 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद 56 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें तो हमें लेना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उन्हें भी हमें लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCF ऑफ 32 एंड 56 इक्वल्स टू, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये दोनों अकेले हैं तो इनको दोनों को लिख लेंगे, और 7 अकेला है तो उसको लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा आपका 224। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 एंड 105 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ये आप होमवर्क में करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM ऑफ 6 एंड 8। तो 6 का पहले फैक्टर निकाल लीजिए, 2 3 6 एंड 3 1 3। 8 का फैक्टर निकाल लीजिए, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। सो 6 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 3, और 8 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो कॉमन है वही हमारा आंसर है। तो LCM ऑफ 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, LCM ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल्स टू, जो कॉमन आया है सिर्फ वो 2। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर B भी कर लेना है। इसमें आपको तीनों के फैक्टर्स निकालने, और तीनों में ही जो कॉमन होगा वही आपका LCM होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको होमवर्क में कर लेना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 75/90। इसे आप अपने घर पे ट्राई करेंगे। न्यूमरेटर मान लीजिए मुझे दे रखा है यहाँ पे 75/90, और इसको मुझे इक्विवेलेंट करना है कब, जब इसका न्यूमरेटर 15 हो। न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो न्यूमरेटर तो हमें 15 पता है, डिनोमिनेटर नहीं पता। अब 15 यहाँ पे कैसा आया होगा, 75 को हमने किस नंबर से डिवाइड किया होगा कि यहाँ 15 आ गया, 5 के टेबल से। तो हमें इस 9 को भी 5 के टेबल से, सॉरी 90 को भी 5 के टेबल से डिवाइड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो 5 1 5 एंड 5 8 40, 18 5 90 होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 15/18। वैसे ही नेक्स्ट में करना है, जब हमारा डिनोमिनेटर 36 हो, मीन्स नीचे वाली वैल्यू 36 हो, उसके बाद न्यूमरेटर अगेन 35 एंड डिनोमिनेटर 60। तो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेने हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स को टैली करना है और बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। इसके बाद इनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप इसे ट्राई करेंगे, और अगर नहीं होता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 35 में एडिशन करना है। एडिशन करना बहुत ईजी है, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देंगे, और जो भी ऊपर न्यूमरेटर दे रखा है उन्हें प्लस कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5/7। वैसे ही आप 2/9, 5/9 को, इनको और इनको सबको ऐड कर देंगे।
वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द डिफरेंस, सेम वही है, सिर्फ डिफरेंस करना है। उसके बाद है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड न्यूमरल्स इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा 5 और 7 नीचे। इट मीन्स होल नंबर को पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में ऐड करना है। तो 6 7 जा 42 प्लस 5/7 इक्वल्स टू 47/7। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसका बी पार्ट और सी पार्ट कर लेना है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड न्यूमरल। तो मिक्स्ड न्यूमरल में करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 9 से 107 को डिवाइड कर दो। तो 9 1 जा 9 माइनस क्या 1 आया और 7 आ गया। तो 9 के टेबल में 17 नहीं आता है बट 9 आ जाता है 1 टाइम में। तो यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो 8। तो अब इसका जो हमारा मिक्स नंबर बना, जो हमारा होल नंबर क्वेश्चन है वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। जो न्यूमरेटर बच गया है, सॉरी जो रिमाइंडर बच गया वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और 9 तो ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर है ही। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को भी कर लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करेंगे। सो कीप सेफ and do your homework properly. Thank you. Have a nice day.